हाउ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. Myself, Mr. Narendra Jangle from Gokhale Education Society's RM Bhatt High School, Paray. Dear students, today we are going to study 9th standard Maths Part 2, that means Geometry, 4th chapter. That 4th chapter is Construction of Triangles. So in construction of triangles, 3 types of constructions are there in this chapter. So what is the first type of construction? The first type of construction is construct a triangle. Construct a triangle if base यानी लेंथ ऑफ बेस, एंगल adjacent to base, angle adjacent to base, and third one is the sum of lengths of remaining two sides. Remaining two sides are given. अगर हम लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया है to construct a triangle if base, angle adjacent to the base and the sum of lengths of two sides are given, then we can construct a triangle. So here the basic construction required for this one is the basic construction which is required to construct this triangles or to solve this example. That is the first basic construction, to draw the perpendicular bisector. To draw the perpendicular bisector of गिवन सेगमेंट. ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम लोग को बेसिक कंस्ट्रक्शन है. नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन सेगमेंट. आई एम शोइंग दैट कंस्ट्रक्शन ऑन पेपर. व्हाई? बिकॉज ऑन बोर्ड the measurement, actual measurements are not taken on the board. We have to take the larger measurements and the instruments are also different. But on paper, I am using the same instruments, same scale, same that you use in an exam. So you will get the perfect idea. So here, this is the first basic construction to draw the perpendicular bisector of a given segment. How to construct the bisector? Here, if we draw the segment of length, suppose 9 centimeter. So here, it is the segment of length 9 centimeter. Let it be segment AB. अगर हम लोग को इसको बाइसेक्ट करना है, देन बाइसेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? कंपास. दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. तो इसको यूज करने का भी एक तरीका है. ये जो दो हम लोग एक जो मेटल का पॉइंट है और एक दूसरा हम लोग पेंसिल उसमें लगाते हैं, तो ये दोनों हमेशा सेम एक ही लेवल पे होने चाहिए. ये चेक कर लेना है, ऊपर नीचे नहीं लगना चाहिए. ये कंपास हम लोग यूज करेंगे. तो कैसे यूज करना है? हियर वी गेट 2 पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी. एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है. ए बी, दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ दैट सेगमेंट ए बी. अभी एक एंड पॉइंट पे रखो ए, विथ ए एज अ सेंटर. ए को सेंटर लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस, मोर देन हाफ यानी कुछ मेजरमेंट नहीं लेना है, ओनली बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिखता है कि इट इज मोर देन हाफ. देन टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस विथ ए एज अ सेंटर, यानी ए पे पॉइंट रखो. इसके ऊपर एक आर्क करो, नीचे एक आर्क करो, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस. डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, सेम रखना है. डिस्टेंस चेंज हो गया तो गलत आएगा. बी पे रखो और सेम प्रोसेस रिपीट करो. ड्रॉ द आर्क्स इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क. जो हम लोगों ने पहले आर्क ड्रॉ किया है उसको ही इंटरसेक्ट करने वाला 2 आर्क और हम लोग को ड्रॉ करना है.
Then we get the point of intersection of two arcs. This is the first point of intersection, or this is the second point of intersection. If we draw the line passing through these 2 points, that line is called the bisector of that line. So here we get the bisector of that line. So in this way, this is a perpendicular, and bisect means divide into 2 equal parts. So in this way we can draw the perpendicular bisector. So this is the basic construction in here. Then to draw the angle and some basic constructions are there. So you can see the video of basic constructions of standard 10th. I have shared that video with 9th standard also. वो वीडियो आप लोग एक बार और देखो, बेसिक कंस्ट्रक्शंस, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देखो, वहां से आप लोग को पता चल जाएगा. See that practice set 4.1. Only 3 examples are there, and all the 3 examples are of construction of triangle. So first example क्या है और वो कंस्ट्रक्ट कैसा करना है, उसका हाउ टू ड्रॉ द रफ फिगर, ये हम लोग को यहाँ पे देखना. व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR. हम लोग को एक ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करना है इन विच QR is given, that is called base. हम लोगों ने टाइप देखा, बेस, एंगल एडजेसेंट टू बेस एंड द sum of remaining 2 sides. QR is given 4.2 centimeter. The angle adjacent to it, that means angle Q, is given 40 degree and sum of the remaining 2 sides. बाकी जो 2 बचा साइड है उनका सम दिया है PQ plus PR is equal to 8.5 सेंटीमीटर. तो इसका पहले रफ फिगर कैसा ड्रॉ करना है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. हाउ टू ड्रॉ द रफ फिगर. सो हियर QR is the base. So first draw QR is equal to 4.2 सेंटीमीटर. तो मैंने QR यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. This is QR. ये रफ फिगर है, रफ फिगर. फाइनल मीन्स फेयर फिगर विल सी ऑन द पेपर. सो QR is equal to this 4.2 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये 4.2 सेंटीमीटर. Now with the help of the protractor draw angle of 40 degree here and draw a ray making an angle of 40 degree at point A, sorry at point Q. यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बड़ा सा रे ड्रॉ कर लेना है मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. तो ये मेजर हम लोग किससे करेंगे, वो पेपर पे आपको पता चलेगा. दिस इज Q इज इक्वल टू 40 डिग्री. नाउ सम ऑफ द 2 साइड्स कितना है, PQ प्लस PR. वो कंपास में लिया, Q से हम लोगों ने यहां तक एक आर्क कर दिया. दिस इज सपोज S पॉइंट and this QS distance is 8.5 सेंटीमीटर. ये QS हो गया. फिर ज्वाइन करो, ये RS ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन द RS and draw the perpendicular bisector of this RS. इसका अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, अभी हम लोग अंदाजे से यहाँ पे दिखाने वाले हैं खाली, बिकॉज दिस इज द रफ फिगर. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. सपोज इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस QS, यानी जो सम हम लोगों ने लिया है उसको जो भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है दैट इज पॉइंट P. और अगर हम लोग PR ज्वाइन करते हैं देन वी गेट ट्रायंगल PQR. सो हियर by the theorem of perpendicular bisector, ये PS और PR इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए ये PQ plus PS means PQ plus PR. The sum is given 8.5. तो ये रफ फिगर हो गया. Let us see the fair figure. लोगों ने एग्जांपल देखा, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया. अभी हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है. सो इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, what is given? One side QR is equal to 4.2 centimeter, यानी one side is given. The angle adjacent to that side, जो एंगल उसके बाजू में है उसको लग के है, that angle is given and sum of the remaining 2 sides, जो बाकी 2 sides है उनका सम हम लोग को दिया है PQ plus PR is equal to 8.5 सेंटीमीटर. Then how to construct that triangle? We see the rough figure. हम लोगों ने रफ फिगर उसका देखा. अभी एक्चुअल फिगर हम लोग को उसका निकालना है. तो पहले क्या करना है, जो QR बेस दैट इज कॉल्ड बेस यानी वन साइड. इफ बेस इज गिवन एंगल एडजेसेंट टू बेस, दैट इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस
an angle adjacent to the base and the length of the sum of the length of remaining two sides are given, then we have to construct the triangle. तो देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. पहले क्या करना है, ये जो QR दिए है हम लोग को 4.2, so let QR is equal to 4.2, draw the segment of length 4.2 सेंटीमीटर QR. तो यहाँ पे हम लोगों ने 4.2 QR ड्रॉ किया. दिस इज QR, उसको नाम दिया हम लोगों ने QR. देखो मैं ये आप लोग को पेपर पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि बोर्ड पे मेजरमेंट अलग रहते हैं और पेपर पे मैं एक्चुअल मेजरमेंट ले रहा हूँ और एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा हूँ. देन यू गेट द क्लियर आइडिया हाउ टू मेजर, हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आप लोग को ये यूज करना आना चाहिए, इसलिए मैं ये पेपर पे आप लोग को बता रहा हूँ. We can also draw on the board, but on board the instruments are different and we can take the measure of larger, means we have to take the measures of larger measurements than the given. यानी जो दिया है 4.2, अगर मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो 4.2 तो इतना छोटा दिखेगा कि आप लोग को उसमें दिखेगा भी नहीं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इस पे लेना है. नाउ अभी हम लोग को क्या दिया है कि एंगल Q का मेजरमेंट दिया है उन्होंने 40 डिग्री. देखो ऊपर एंगल Q 40 डिग्री दिया है. तो हम लोग को अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है पता है, प्रोट्रैक्टर. सो यूजिंग प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल. सो हियर इट इज अ प्रोट्रैक्टर प्लेस एट पॉइंट Q पे रखना है सेंटर उसका, और ये जो लाइन है देखो R की तरफ जाने वाली, उसको परफेक्टली कोइंसाइड करना है. और R पॉइंट A बाजू में, तो ये बाजू में से मेजर करो 0, 10, 20, 30 एंड 40. सो हियर वी गेट 40 डिग्री. तो 40 डिग्री QR, एक बड़ा रे हम लोग को यहाँ पे निकाल के लेना है. Q से लेके ड्रॉ द रे, एक बड़ा सा रे यहाँ पे निकाल लो. ये हो गया. नाउ दिस इज 40 डिग्री, ये दिया है हम लोग को 40 डिग्री, बराबर. अभी क्या करना है, द सम ऑफ द लेंथ कितना है, बाकी का जो दो साइड बचा है उनका सम हम लोग को दिया है 8.5 सेंटीमीटर. सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, रिमेनिंग साइड्स, वो हम लोग को कंपास में लेना है 8.5 सेंटीमीटर. ये देखो यहाँ पे दिया है PQ प्लस PR. सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स वो कंपास में लेना है. कंपास में कैसा लेना है, तो स्केल रखो ऐसा नीचे, यहाँ पे 1 जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे कंपास रखो और 8.5 तक ऐसा मेजर करो, देखो बराबर. और ये हो गया 8.5 विथ Q एज अ सेंटर. Q पे कंपास रखो और 8.5 पे एक आर्क करो. इज इट क्लियर? 8.5 पे एक आर्क करो. लेट दैट पॉइंट बी S, एनी पॉइंट अदर देन PQR. S पॉइंट हम लोगों ने वहां पे लिया, देखो ये S पॉइंट. नाउ जॉइन दिस R एंड S, और RS को हम लोग को क्या करना है, अभी ज्वाइन कर देना है. याद रखो बराबर क्या क्या किया है, वापिस मैं बताने वाला हूं अभी. तो देखो मैं क्या क्या किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ बेस QR इज इक्वल टू जितना दिया है उतना 4.2 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ कर लिया, बराबर. उसके बाद एंगल Q दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ पे मैं ये प्रोट्रैक्टर रख के ये 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और ये बड़ा सा एक रे यहाँ पे निकाल दिया. कभी ऊपर निकाल सकते, कभी नीचे निकालना है, तो डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल. तो ये S पॉइंट मिल गया. ये डिस्टेंस कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, यानी कितना, PQ प्लस PR जितना ये डिस्टेंस हम लोग को लेना है. अभी ये जो RS है, ये RS को बाइसेक्ट करना है. ये जो साइड RS है इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है. यू नो हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर. तो पॉइंट R पे मैं रखता हूं कंपास, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया. देखो यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस विथ R एज अ सेंटर, R सेंटर में लिया, मोर देन हाफ डिस्टेंस. एक ये साइड में, एक ये साइड में, दोनों साइड में आर्क बना दिया. कीपिंग द डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस चेंज मत करो. और S पे रख के वापिस इसको इंटरसेक्ट करने वाला दो आर्क हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं. ये देखो. नाउ
ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये एक हो गया, यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। तो हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस यहाँ पे। तो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट दिस क्यू एस एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज अवर पी। जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है वो अपना पी है, पी आर ज्वाइन कर दो, वी गेट ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो इज इट क्लियर? इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन, बेस क्यू आर, एंगल क्यू मीन्स एंगल एडजेसेंट टू बेस, यहां आर दिया रहेगा या क्यू दिया रहेगा, दोनों में से कोई भी है। और सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, तो क्या किया हम लोगों ने, क्यू आर ड्रॉ किया, पहले एंगल क्यू ड्रॉ किया, बड़ा सा रे निकल लिया, देन टेक अ डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ द टू साइड्स, जो सम दिया है 8.5 उतना डिस्टेंस कंपास में लिया, देन ड्रॉ फ्रॉम क्यू, ड्रॉ द आर्क, ये एस पॉइंट लिया, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ आर एस का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो बाइसेक्टर, ये जो लाइन हम लोगों ने रे ड्रॉ किया, इसको जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है दैट इज अवर पॉइंट पी। तो पी आर ज्वाइन कर दिया, पी क्यू तो ऑलरेडी ज्वाइन है, क्यू आर ज्वाइन है, वी गेट ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दिस इज अवर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल, ऑल एग्जांपल्स आर सेम, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ट्रायंगल एक्स वाई जेड मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें मुझे बेस दिया है वाई जेड। द बेस वाई जेड इज गिवन 6 सेंटीमीटर, देन एंगल एक्स वाई जेड मीन्स एंगल वाई इज गिवन व्हाट, 50 degree. Angle y is given 50 degree and xy plus xz, sum of the remaining two sides xy plus xz is 9 centimeter. Then construct a triangle. तो इसका रफ फिगर कैसा बनाना है, देखो yz, first we have to draw yz is equal to 6 centimeter, एक yz 6 centimeter का ड्रॉ कर दिया, this is yz। नाउ एंगल y इज 50 डिग्री, तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर से हम लोगों ने प्रोट्रैक्टर रखा, 50 डिग्री मेजर किया, और ये 50 डिग्री का एक रे हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अभी हम लोग रफ फिगर बना रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग द रफ फिगर, दैट्स व्हाई नो नीड टू टेक द मेजर, एक्चुअल मेजर्स। सो हियर इट इज 50 डिग्री, दिस इज 6 सेंटीमीटर। Now sum of the remaining two sides is 9 centimeter. In a compass, take a distance of 9 centimeter and draw one arc. We get here, suppose this is point P, join this PZ, ये PZ को join कर दो, and bisect the segment PZ। इसका अगर हम लोग बाइसेक्टर निकालते हैं यहाँ पे ऐसा, देखो so here this is point X, ये एक्स जेड हम लोग को ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया इसका रफ फिगर। तो यहाँ पे एक्स पी और ये एक्स जेड इक्वल, नाउ सी द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द, क्या कह दिया देखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हम लोगों ने वो उसका रफ फिगर वगैरह देखा। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या क्या दिया है वो पहले लिख लो। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई जेड यानी बेस, ये कंस्ट्रक्शन का नाम क्या है, बेस इज गिवन, एंगल एडजेसेंट टू बेस यानी एंगल एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स वाई जेड मतलब एंगल वाई इज 50 डिग्री, ये वाई 50 डिग्री दिया है, और सम ऑफ द टू साइड्स एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9, देन कंस्ट्रक्ट दैट ट्रायंगल। तो अभी अभी हम लोगों ने जो देखा वही रिपीट करना है, कुछ अलग उसमें नहीं है। फर्स्ट ड्रॉ द बेस, वाई जेड जो बेस दिया है पहले बेस ड्रॉ करना है, वाई जेड इज इक्वल टू 6, तो पहले मैं 6 सेंटीमीटर इज वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूं। सो हियर दिस इज वाई जेड, ये पेंसिल रिपीट नहीं करना है आप लोग, मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि डार्क आए और आप लोग को ये कैमरा में दिखे, इसलिए अगर मैं सिंगल लाइन निकालूंगा तो कैमरा में नहीं आएगा क्योंकि लाइट आता है पेंसिल का लाइन। सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग, बट इन एग्जाम और वाइल ड्राइंग कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग यू डोंट रिपीट द लाइन। देन सेकंड थिंग, व्हाट इज गिवन, वाई
एंगल y इज 50 डिग्री, तो y पे हम लोग को क्या करना है, ये प्रोट्रैक्टर लिया, यहाँ पे 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, ये 50 डिग्री मार्क किया और एक बड़ा सा रे निकाल दिया 50 डिग्री का। ये हो गया 50 डिग्री। यहाँ पे दिस मेजरमेंट इज 50 डिग्री। नाउ the sum of the remaining two sides is given 9 centimeter xy plus yz, that is 9 centimeter। वो sum दिया है 9 centimeter। take a distance of 9 centimeter in a compass। अभी कंपास में 9 centimeter distance लो, तो कंपास में हम लोगों ने 9 centimeter distance लिया। y पे कंपास रखो और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करो, let it be any point, suppose m। now join this zm, ये जो mz या zm है इसको ज्वाइन कर दो और बाइसेक्ट दिस zm को बाइसेक्ट करना है m पे रखा, मोर देन हाफ डिस्टेंस अंदाजे से लेते हैं हम लोग, और एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करो, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस चेंज मत करो। विथ z एज सेंटर ड्रॉ द आर्क्स इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो वापस m पे रख के हम लोग को उसको एक्सटेंड करना है आर्क को, देन वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो हियर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू साइड्स, टू आर्क्स, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस, सो वी गेट द बाइसेक्टर ऑफ दिस mz, this bisector intersect this ym in point x, so we get xyz, और ये ज्वाइन कर दिया तो xyz ये ट्राइंगल हम लोग को मिला। बिकॉज यूजिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट xy प्लस yz, sorry here xz is there, xy plus xz, this sum is given 9। तो ये जो दोनों है ये इक्वल आएगा क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो पॉइंट x इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग को ये xy प्लस yz इज इक्वल टू ये डिस्टेंस यहाँ पे मिलता है 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर सेकेंड कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल है। अभी तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते थे, क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC। थर्ड एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल ABC, BC यानी बेस दिया है 6.2 सेंटीमीटर, BC इज द बेस, ये दिया है हम लोग को 6.2 सेंटीमीटर। एंगल ACB, दैट मीन्स एंगल C इज गिवन, दैट इज 50 डिग्री, एंड AB प्लस AC, दिस सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स AB प्लस AC, दिस सम इज 9.8 सेंटीमीटर। देन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। ये थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल है। सेम थिंग वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट BC ड्रॉ कर लिया। दिस इज 6.2 सेंटीमीटर, सेगमेंट BC 6.2 सेंटीमीटर। नो एंगल C इज गिवन 50 डिग्री, यहाँ पे एंगल C इज गिवन, तो ये साइड में ड्रॉ करेंगे, दूसरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो हियर एट C प्लस द सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर, ये जो सेंटर है इसका, और ये लाइन यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोइंसाइड करो एंड मेजर फ्रॉम लेफ्ट, बिकॉज द सेकेंड पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से हम लोग को कितना डिग्री मेजर करना है, 50 डिग्री। सो 50 डिग्री मेजर करके यहाँ से एक बड़ा सा रे ड्रॉ कर लेना है। Draw the ray making an angle of 50 degree at point C. Now take a distance 9.8 in a compass. जो sum दिया है, sum of the remaining two sides is 9.8. Then take a distance of 9.8 in a compass. Now with C as a center, C center लेके एक arc draw करो. We get this point as suppose P. or any point, you can write the name other than ABC. Now join that PB, ये जो थर्ड पॉइंट है अपना, और P ज्वाइन कर लेना है।
this distance is 9.8 centimeter because this is the sum of the remaining two sides. Now bisect this BC, ये BP, BP को bisect करो और जो bisector यहाँ पे intersect करेगा that point is A. So you know how to bisect. B पे रखना है, take more than half distance अंदाजे से and draw the arcs on both side, एक left में एक right में with same distance and this P as a center. P center लेके वापस दो आर्क हम लोग को ड्रॉ करना है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. अगर इंटरसेक्ट नहीं होता है, इफ दिस आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन एक्सटेंड द प्रीवियस आर्क. सो वी गेट दिस 2 point of intersection, this one and this one. So draw a line passing through this. This is the perpendicular bisector of that BP. ये जो P point है यहाँ पे देखो, ये BP का perpendicular bisector हो गया. That means this distance is equal to this distance. So this is our point A. Now join this A and B. ये जो AB है ये यहाँ पे join करो AB. Then we get triangle ABC here. This equals this according to the perpendicular bisector segment, and AC plus AB is equal to, because AB is equal to this one, that's why we take the total distance. So here this first exercise means 4.1 is completed. Dear friends, here the 4.1 यानी construction of triangles. Which type of construction of triangle? The base of a triangle is given, यानी one side का length दिया है. The length of one side is given, that is called base. तो पहले base draw करना है हम लोग को. Then angle adjacent to that base. तो यहाँ पे ये angle दिया रहेगा या ये angle दिया रहेगा. Sometimes this angle, sometimes this angle. That is called base angle. And sum of the remaining two sides. If that things are given, then construct the triangle. That is our 4.1. Here it is completed. If you have any doubt, then write in the comment box or ask. My WhatsApp number is there. And please, if you like the video, subscribe the channel, like the channel's video, and subscribe the channel and share these videos to your friends. Thank you.